बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। मैग्नेट क्या होता है और उसके अंदर वो कौन सी ख़ास खसूसियात होती हैं जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो आइए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा प्लान है उसमें सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे डेफिनेशन मैग्नेट क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि उसके पोल्स के बारे में। उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, दो तरह के होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं और नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक में आयरन, निकल, कोबाल्ट हैं और नॉन मैग्नेटिक में वुड, प्लास्टिक, रबर, स्टोन और इस तरह की दूसरी चीज़ें। फिर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि अर्थ अलाइनमेंट जो होती है उसमें सेपरेट उसके पोल्स होते हैं। फिर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि सिमिलर पोल जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो ये है आज का हमारा प्लान। आज के इस लेसन में हम बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। आप तवज्जो से देखिए और सुनिए। लेकिन इससे पहले ये एक वीडियो है, उसको भी आप सुन भी लें और देख लें। उसमें सादा इंग्लिश में समझाया गया है। क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं इसलिए हमें इंग्लिश में चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आनी चाहिए। तो सबसे पहले सुनिए इस लेसन में क्या कहा जा रहा है। All right, today we're diving into something super cool, an invisible force that's literally all around us, shaping our world. I'm talking about everything from how you stick a note on your fridge to the way our entire planet works. Yep, we're talking about magnets. We've all played with them, right? Felt that weird pull? But what's really going on there? Have you ever really thought about it? That strange, invisible pull you feel when you bring two magnets close together? Or why that magnet on your fridge just, well, sticks? It's a force we kind of take for granted, but today we're going to break down exactly what it is. So, what is a magnet? Well, at its most basic, it's a piece of material with a kind of superpower. It has the ability to attract a very specific group of other metals. We're talking iron, nickel, and cobalt. It's like a really exclusive club. But you know, what a magnet pulls in is only half the story. The other half is all about the magnet itself, its own fundamental identity. Okay, so let's get into what makes a magnet a magnet. Every single one, it doesn't matter what shape or size it is defined by one key feature. It has two very distinct ends. We call them poles. And this is the golden rule, the one unbreakable law of magnetism. Every single magnet has exactly two poles. No exceptions. Always two. You just can't have a magnet with only one pole. In fact, it's kind of wild. If you take a magnet and snap it in half, you don't end up with one north piece and one south piece. Nope. You just get two brand new, smaller magnets. And guess what? Each one has its own north and south pole. So what do we call these two poles? Simple, the North Pole and the South Pole. Now, that might sound familiar, and there's a good reason for that. The names are directly tied to our very own planet Earth. Here's how it works. If you were to take a bar magnet and just let it hang freely, like on a string, something amazing happens. One end will always swing around and point towards the Earth's geographic north. We call that the magnet's north seeking pole, or for short, the North Pole. And the other end? Well, naturally, it points south. That's its south pole. Simple as that. So we know what a magnet is. Now let's talk about its social life. Magnets are, let's just say, very picky about who they hang out with. They don't interact with just any old material. You could say a magnet has a pretty tiny social circle. It's really selective. It will only attract what we call magnetic materials, think iron, nickel, and cobalt. That's pretty much it. Everything else? Wood, plastic, stone, your notebook paper, totally non-magnetic. And the reason for this is all the way down at the atomic level. It's about how the electrons are arranged. Only a few special materials have electrons that can line up just right to create that magnetic pole. Okay, now for the fun part. We know what magnets attract, but how do they act around other magnets? It all comes down to two very simple but very powerful rules of engagement. Here we go, rule number one, and you've definitely heard this before. Opposites attract. It's true for magnets for sure. If you take the north pole of one magnet and bring it close to the south pole of another, you'll feel that satisfying snap as they pull together and stick. And of course, here's the other side of that coin. Poles that are the same, or like poles, they push each other away. They repel.
If you've ever tried to force two north poles together or two south poles, you know what I'm talking about. You feel them push apart, almost like there's an invisible cushion sitting between them that you just can't squeeze. So let's do a quick recap of what we've learned. It's pretty straightforward, right? Every magnet has two poles, a north and a south. Opposite poles pull together, and similar poles push apart. These simple rules explain basically every magnetic interaction you'll ever see. But what is it that's actually doing the pushing and pulling? This is where it gets really mind-blowing. That push and pull you feel, it isn't magic. It's a very real, measurable force that exists in the space around every single magnet. We call this zone of influence the magnetic field. You can think of it like an invisible force field or a bubble of energy that surrounds the magnet. Any magnetic material that wanders into this field is going to feel its force, either a pull or a push. And just like gravity, the closer you get to the magnet, the stronger that force becomes. And look, this isn't just some abstract science stuff. These rules are happening all around you, right now. It's in the magnet holding up your grocery list, it's inside the electric motors that make so many things in our lives work, and it's what makes a compass point north. So now that you know the secrets behind this invisible force, what are you going to spot out there in the world? What will you see a little differently? इनविजिबल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं देती. एन इंक्वायरी इनटू द फंडामेंटल नेचर ऑफ मैग्नेट. हम मैग्नेट के बुनियादी नेचर्स के बारे में, उसकी फितरत के बारे में, जो उसके अंदर इनबिल्ट होती है, उसके बारे में बात करेंगे. इनविजिबल फोर्स है जो हमें फोर्स नज़र नहीं आती, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम आती है. So student, Bauhaus grotesque display Pro 65 medium that exerts this force. We call this object a magnet. A magnet is defined as a metal that possesses the unique ability to attract specific other metals. ये एक ख़ास मेटल है जो ख़ास किस्म की दूसरी मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसके अंदर. तो मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसी मेटल है जो स्पेशल किस्म की मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. तमाम मेटल्स को भी ये अट्रैक्ट नहीं करती. तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. विच मटेरियल रेस्पॉन्ड टू अ मैग्नेट्स पुल. मैग्नेट पुल जो होती है, यानी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है किन चीज़ों को? मगनातीस किन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है? अब मैग्नेट डज नॉट इंटरैक्ट विथ एवरीथिंग. ये याद रखें कि मैग्नेट हर चीज़ के साथ इंटरैक्ट नहीं करती. मैग्नेट जो है हर चीज़ को अपनी तरफ रिपेल या उसको अट्रैक्ट नहीं करता. इट selectively attracts a specific class of materials known as magnetic material. ये ख़ास किस्म के मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वो ख़ास किस्म के मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं. यानी वो मटेरियल जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मगनातीस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं. इनके बारे में देखते हैं कि वो कौन से होते हैं. तो स्टूडेंट, द मैग्नेटिक मटेरियल्स आर मेड ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट. आयरन, आमतौर पे हमें ये मालूम है कि लोहे को मगनातीस अपनी तरफ खींचता है, लेकिन आयरन यानी लोहे के अलावा निकल और कोबाल्ट को भी मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो ये आयरन हो गया, निकल हो गया और कोबाल्ट, ये क्या है? ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं. द मैग्नेट एक्सक्लूसिवली अट्रैक्ट्स मटेरियल्स कंपोज्ड ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स. इन तीन चीज़ों के, इन तीन एलिमेंट्स से बनी हुई चीज़ों को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. यानी आयरन, निकल और कोबाल्ट. इसमें ज़्यादा आयरन के बारे में तो सबको पता है, हमें निकल और कोबाल्ट के बारे में पता होना चाहिए कि ये मैग्नेट इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. एंड व्हाट मटेरियल डज द मैग्नेट इग्नोर. और कौन से मटेरियल हैं जिन्हें मैग्नेट इग्नोर करता है, वो नज़रअंदाज करता है, कहता है नहीं मैं आपको अट्रैक्ट नहीं करता, मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है. और वो ज़्यादा है. मोस्ट मटेरियल्स इन आवर डेली एनवायरनमेंट आर अनअफेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फोर्स. These are called non-magnetic materials. ज़्यादातर जो मटेरियल्स हैं जो हमारे माहौल में होते हैं, वो मैग्नेट्स उनको अट्रैक्ट नहीं करता, वो उन्हें इग्नोर करता है, वो उन्हें नज़रअंदाज करता है.
उन मटेरियल्स को हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। यानी वो मटेरियल्स, वो चीज़ें जिनको मैग्नेट मकनातीस अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। और वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या चीज़ शामिल है? उसमें वुड शामिल है, उसमें प्लास्टिक है, रबड़ है, पेपर है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबड़ है, शीशा है और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, इनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। द मैग्नेट विल नॉट अट्रैक्ट दीज कॉमन मटेरियल्स, दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। डज द मैग्नेट हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू एट ईच एंड? इसके जो मैग्नेट के जो एंड होते हैं, सिरे होते हैं, ये ख़ास इनके अंदर एक खसूसियत होती है, ख़ास बात होती है। और वो दो उसके सिरे हैं, एक को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को कहते हैं साउथ पोल। यस, एवरी मैग्नेट हैज़ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नॉन एज पोल्स। ये जो मैग्नेट हैं, इनके सिरों को, इसके जो एंड हैं, उनको हम पोल्स कहते हैं। दीज आर designated as North Pole and South Pole। इन्हें हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। एक हिस्से को, एक सिरे को नॉर्थ पोल कहते हैं, दूसरे को साउथ पोल कहते हैं। ये नाम इनको क्यों दिए गए हैं? नॉर्थ पोल शुमाली कुतुब, साउथ पोल जनूबी कुतुब, ये क्यों इनको ये नाम दिए गए हैं? तो स्टूडेंट्स, ये कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है? हाउ डू वी डिटरमिन विच पोल इज विच? व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड a magnet aligns itself with the earth. The end that points towards the earth's geographical north is the magnetic north pole and the end that points south is its south pole। ऐसा जब हम मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो उसका एक पोल ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही नॉर्थ की तरफ हो जाता है और एक पोल जो है साउथ की तरफ हो जाता है। तो जो पोल नॉर्थ की तरफ हो जाता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं और जो साउथ की तरफ हो जाता है उसे साउथ पोल कहते हैं। ये इस वजह से इनके नाम रखे गए हैं। और ये बड़ी काम की चीज़ है। इस मकनातीस की इस खसूसियत की बुनियाद पे डायरेक्शंस मालूम की जा सकती हैं। और ये पहले ज़माने में मकनातीस की मदद से ही सिमतें मालूम की जाती थी। बहरी जहाज़ वगैरह जो हैं वो इन्हीं के ज़रिए अपनी डायरेक्शन जो है वो डिफ़ाइन करते थे। कुतुबनुमा हुआ करते थे जो कि मकनातीस के बने होते थे, जो कि ऑटोमेटिकली इसका एक पोल नॉर्थ की तरफ हो जाता है और एक साउथ पोल की तरफ हो जाता है। तो इस खसूसियत की वजह से इनको कुतुबनुमा के तौर पे या इनको डायरेक्शन मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। What happens when like poles meet? अगर लाइक पोल जो हैं, एक जैसे पोल हो, यानी नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अगर उनको एक दूसरे के करीब लाया जाए तो क्या होगा? सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। सिमिलर पोल हैं, ये पोल एक, ये और ये पोल जो हैं वो सिमिलर हैं, साउथ पोल हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को परे धकेलते हैं। दे रिपेल ईच अदर, यानी उनमें रिपल्शन होती है। सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। जैसे कि हमने चार्जेस के बारे में पिछले लेसन में पढ़ा था कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसी तरह जो मैग्नेट है उसके जो सिमिलर पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अ नॉर्थ पोल विल पुश अवे अनदर नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल विल पुश अवे अनदर साउथ पोल। साउथ पोल जो है साउथ पोल को रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में रिपल्शन होती है, साउथ पोल और साउथ पोल में रिपल्शन होती है। यानी उसूल या रूल क्या है? सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन अपोजिट पोल्स मीट? अगर अपोजिट पोल हो, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ये अगर उनको करीब लाया जाए फिर क्या होगा? अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट पोल है, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। A north pole and a south pole will pull towards one another। नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनमें अट्रैक्शन होती है। यानी दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल है या रूल है वो क्या है कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर।
सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये दो उसूल हमें याद रखने हैं। What is source of this invisible influence? ये जो इनविजिबल इन्फ्लुएंस हम कहते हैं कि मैग्नेट के इर्द गिर्द एक ख़ास किस्म की कुव्वत होती है, एक ख़ास किस्म की फोर्स होती है, इसकी वजह क्या है? The area of influence surrounding a magnet is called its magnetic field. मैग्नेट के करीब का एरिया जहाँ तक उसकी अट्रैक्शन को महसूस किया जा सके, उसकी अट्रैक्शन को उसके अट्रैक्शन को यानी महसूस हो। एक मैग्नेटिक मटेरियल अगर उस इलाके में लेके जाएंगे तो मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो वो इलाका अगर हम बहुत दूर जाएंगे, यहाँ बहुत दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन नहीं होगी। यानी मैग्नेट के इर्द गिर्द वो इलाका जहाँ तक मैग्नेट का असर होता है, मैग्नेट का इन्फ्लुएंस होता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस सराउंडिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। जहाँ तक इस मैग्नेट की फोर्स को की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। दिस फील्ड इज व्हाट exerts force on magnetic materials and other magnets without physical contact। यानी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। ये ऐसी फोर्स होती है जिसके लिए करीब होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट टच होना जरूरी नहीं है। तो इस मैग्नेट के इर्द गिर्द का वो इलाका जहाँ तक मैग्नेट रिपल्शन या अट्रैक्शन करती है, मैग्नेटिक मटेरियल्स को तो अट्रैक्ट करेगी, अपोजिट पोल को भी अट्रैक्ट करेगी, लेकिन सिमिलर पोल जो होगा, एक और मैग्नेट हम ले और सिमिलर पोल हो तो उसे रिपेल करेगी। तो वो एरिया मैग्नेट के इर्द गिर्द का वो एरिया जहाँ पर उसकी अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है उसको डिटेक्ट किया जा सके, जहाँ तक उसकी अट्रैक्शन रिपल्शन का असर होता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेट के इर्द गिर्द का वो एरिया जहाँ तक मैग्नेट का रिपल्शन या अट्रैक्शन का असर होता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है और ये आमतौर पोल पे ज़्यादा स्ट्रांग होता है और जो सेंट्रल एरिया होता है उसमें ये ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग नहीं होता, वीकर होता है। यानी पोल्स पे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। द मैग्नेटिक फील्ड इज अ मैग्नेट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यानी ये वो इलाका है, वो इर्द गिर्द का इलाका है जहाँ तक कि मैग्नेट के असर को महसूस किया जा सकता हो। वो सफ़ियर का मतलब इसके चारों तरफ होगा। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ फॉर्मली defined as the area around a magnet where it can attract a magnetic material. If a material is outside of this field, it will not be affected. अगर इस फील्ड के अंदर कोई चीज़ होगी तो उसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये एक है, हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट, लेकिन ये वाला जो है, ये नंबर 2, ये उसके फील्ड के बाहर पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। यानी वो एरिया जहाँ तक मैग्नेट की अट्रैक्शन या रिपल्शन को डिटेक्ट किया जा सके, जहाँ तक उसकी अट्रैक्शन और रिपल्शन का इन्फ्लुएंस होता है, असर होता है, उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फ्रॉम सिंपल मैटर टू अ फील्ड ऑफ फोर्स टू अ फील्ड ऑफ फोर्स। तो हम देखते हैं कि अब इसमें एक जो सिंपल मैटर है वो क्या करता है। Our inquiry revealed a complete system, a metallic object with distinct north and south poles which follow strict rules of attraction and repulsion, all governed by an invisible but powerful magnetic field। यानी हमने अब तक जो चीज़ पढ़ी है उसमें क्या है कि मैग्नेट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करती है, और इसमें हमने ख़ास बात ये उसूल पढ़े हैं। पहला उसूल ये है कि सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। इन नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल को रिपेल करेगा, जबकि अपोजिट पोल्स नॉर्थ एंड साउथ या साउथ एंड नॉर्थ दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। फिर हमने ये भी देखा है कि जो कोबाल्ट है या निकल है या आयरन है, ये चीज़ें जो हैं वो दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, जबकि दूसरी चीज़ें जैसे प्लास्टिक है, शीशा है, वुड है, ये चीज़ें ऐसी हैं, इवन कॉपर है या दूसरी चीज़ें हैं जो कि मेटल भी हैं,
लेकिन उनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। तो वो चीज़ें जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और वो चीज़ें जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता उन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि किसी मैग्नेट के इर्द गिर्द का वो इलाका जहाँ पर उसके असर को महसूस किया जा सके, जहाँ तक वो असर करता है मैग्नेट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने डिफाइन किया मैग्नेट को, और हमने कहा है कि मैग्नेट जो है वो क्या चीज़ होती है। फिर हमने कहा है कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर हमने देखा कि टाइप ऑफ मटेरियल्स दो होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स और एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल में आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है। फिर हमने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को पढ़ा, उसमें वुड है, प्लास्टिक है और ये दूसरी चीज़ें हैं। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि अगर ज़मीन के साथ हम इसको सस्पेंड करते हैं हॉरिजॉन्टली तो उसका एक पोल साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है। फिर हमने इंटरेक्शन ऑफ पोल्स का पढ़ा था, उसके उसूल हमने दो पढ़े हैं। सिमिलर पोल जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी मैग्नेट के इर्द गिर्द का वो इलाका जहाँ तक उस मैग्नेट के असर को महसूस किया जा सके, जहाँ तक वो मैग्नेट अट्रैक्शन या रिपल्शन करता है। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन दिलचस्प लगा होगा, आसान भी है, मुश्किल नहीं है। इसको हमने समझ लिया और देख लिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये YouTube चैनल सिर्फ तालीम और तालीम के लिए है। इसका मकसद तालीम को आम करना है, इसका मकसद तालीम को आसान करना है, इसका मकसद तालीम को दिलचस्प बनाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आ रहे होंगे और आप इनसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। हम दुआ करते हैं, रब ज़िदनी इल्मा, है अल्लाह है रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आप इस चैनल को आगे बढ़ाकर दूसरों के साथ शेयर करके, इसे लाइक करके और इसे सब्सक्राइब करके इस चैनल की मदद कर सकते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और इसे टीचर भी और स्टूडेंट भी इस्तेमाल कर सकें, जिसका मकसद सिर्फ तालीम और तालीम है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।